Hello there and welcome. This is Ritik from Ace the Clad and this video is about how to make notes for current affairs using Notion. Okay, जो database की मैंने बात करी है. If you go over here at current affairs section now, you would find that here is a database, right? और Notion page के जो later events है उसके Notion pages भी attached हैं. Okay, this video is about giving you an idea of how you should be using Notion to create notes. Okay. So कुछ FAQs देख लेते हैं. First, what is Notion? So possibilities are endless, to be honest, but for us, for CLAT aspirants, it is just a simple note-taking platform. It is not as, yeah, it is simple, but it is very effective as well. Okay, how much does it cost? It is the free plan would work. It is $4, so around 250, 300 rupees per month. But free plan would just work as fine. Okay, how do I use it, or for what purpose can you use it? You can use this for creating notes for current affairs and for other concepts as well if you want. Okay, but yeah, primarily for making notes in current affairs and scheduling your day. Okay, you can schedule your day as well. Okay, illustration अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ. How much time would I take to get familiar with this platform? So I think 1 week should be enough. Okay, 1 week should be pretty much it. You would be able to get familiar with this platform in a week. Useful extension is Notion Web Clipper. I would talk about this later. Okay, and yeah, इसके बारे में बात थोड़े समय बात करते हैं. Okay, yeah, let's go to the website. To my website is theclat.in और ये current affairs पे जाओ तो is theclat.in/current affairs and let's select this event. Okay, India at UNSC. Now I click over here. Okay, I can click over here and यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा रहा होगा तुम्हें. यहाँ पे तुम्हें पहले तो you have to log in with your Notion account. Okay, on your browser. एक Notion account भी बना सकते हो, जाके सिंपल सा प्रोसीजर है, साइन अप कर लेना. ओके, एंड वंस यू डू दैट, ओके, एंड जैसे मैंने बोला यहाँ से आपने आर्टिकल या Notion पेज खोला. ऑलराइट, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डुप्लीकेट का, राइट? So you can use this page as a template. Okay, if you duplicate it now, let's see what it does. India at UNSC की मैं बात कर रहा हूँ and now I have duplicated it and now ये पूरा पेज एक तरह से मेरा हो गया. ओके, और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ. मुझे नोट्स बनाने हैं तो आर्टिकल्स यहाँ पे लिंक्ड हैं ही, ये स्प्रेडशीट ये सब लिंक्ड है, वो सब अलग बात है. जैसे कि ये आर्टिकल है, राइट, इंडिया एट यूएनएससी प्रीवियस कंट्रीब्यूशन एंड करंट चैलेंजेस. सो वाई न्यूज़, ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है. ओके, आई कैन मेक नोट्स ओवर हियर बाय सिंपली टाइपिंग आउट. ओके, बस इतना सा ही प्रोसीजर था. आपको सिंपली वहाँ पे जाके डुप्लीकेट करना है एंड ये आपके आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा. सो ऋतिक्स नोशन वो अलग अकाउंट है, ये नया अकाउंट बनाया मैंने जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए. इंडिया एट यूएनएससी ये आगे आप अगर दूसरा if you select another event और उसका आप use as duplicate करोगे, if you use that as a duplicate, that would get added over here as well. Okay, so इससे आप notes simply जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नोट्स बनाओगे वैसे बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इट सेज इंडिया फॉर द 8th टाइम, सो यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स. ये कॉल आउट फंक्शन इसका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे फॉर मेकिंग नोट्स विद इन एन आर्टिकल. ठीक है, सो इट सेज वाई न्यूज़ India for the 8th time, so you can just type it out, right? India elected to UN for the 8th time. Okay, फिर नीचे आप चाहोगे जैसे तो contributions of India at UNSC बहुत अलग अलग समय पे पिछले 7 times जब इंडिया ने सर्व किया है उसकी contribution लिखे हुए हैं. ओके, इसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा, मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? जैसे कि फर्स्ट टाइम इंडिया सर्व्ड UN at in 1951. First time 1951. Okay, and the previous stint was in 2011-12 if I remember. Yeah, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो बाकी आर्टिकल्स के भी. सो एक आर्टिकल का जो है ना, इसे आप पूरा इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी लेके जाके जैसे आर्टिकल के एंड पे आपने नोट्स बनाया और जाके ड्रैग कर दिया. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात है कि ये नोशन जो है ब्राउज़र पे ही काम कर रहा है, आप देख ही रहे हो, राइट? सो बहुत ही लाइट ब्राउज़र है. किसी भी लैपटॉप में आपने
मैंने इसे 10 साल पुराने एक पीसी पे भी ट्राई किया था, इट वर्क्स जस्ट एज फाइन। ओके, थोड़ा और बताऊँ तो यहाँ पे डार्क मोड है, फिर इफ़ यू नो। ओके, सेटिंग्स में जाके अपीयरेंस में आप जाके डार्क कर सकते हो, या सो ये आइज़ के लिए काफ़ी स्टेन कम कर देता है। ऑलराइट, तो ये आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो आर्टिकल के लास्ट में जाके उसे, तो आप जब आर्टिकल वापस इस पे आओगे, राइट, तो उसे रिवाइज करने में आसानी होगी। ओके, सो नॉर्मली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप एक ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट का भी एक नोट बनाओ। तो यू कैन सिंपली, for example, if you find that this is an opinion based note, you can just turn it into green color or into some other color. Okay, just spend time on the platform, you would get to know about this a lot, and probably watch some video lesson on this, on specifically on how to use Notion for making notes. मैं स्पेसिफिकली क्लैट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, या सो इस तरह से। और एक जगह पे कहाँ पे इस्तेमाल इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, दैट प्लेस इज इन वीडियो लेसन्स। सो ये जो वीडियो लेसन है, राइट, मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो इस वीडियो लेसन का जो मुझे यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे प्लस आइकन है, राइट, सो ये सिक्स डॉट्स का एक ब्लॉक खुल जाता है। ओके, जस्ट तो ये स्टडी IQ के नोट्स हैं ऑन दिस टॉपिक, and I can start making my notes on this video, so I can play it from here and study IQ के notes इस टॉपिक के लिए I can make it over here, right? One-on-one mentoring का you can get personal assistance from my side. Okay, yeah. So इस तरह से आप आर्टिकल्स के कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा, ये पूरा का पूरा आर्टिकल या पूरा का पूरा पेज आपका हो चुका है, राइट? जैसे आपने उसे डुप्लीकेट या यू यूज़ इट एज अ टेम्पलेट। मेरा इनिशियली प्लान था टू give it to only gold members, but for now you all are gold members technically, so simply duplicate कर सकते हो आप। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नोशन पे नोट्स कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक आइडिया तो लगी गया होगा। नाउ लेट्स लुक एट अदर थिंग्स। सो यूज़फुल एक्सटेंशन, हाँ, तो एक नोशन वेब क्लिपर का ना एक यूज़फुल एक्सटेंशन है। सो व्हाट दैट डज इज़ व्हेन यू इंस्टॉल इट, राइट, एंड कोई आपने आर्टिकल पढ़ा और यहाँ पे एक, जैसे आप उसे इंस्टॉल करोगे, राइट, सो उसे आप जैसे क्लिक करोगे, यू कैन सेव दैट पेज इनटू योर नोशन पेज। सेव दिस आर्टिकल फॉर एग्जांपल इनटू योर नोशन पेज। तो यहाँ पे आके वो लिंक हो जाएगा, या जहाँ पे भी आप उसे लोकेशन बता दोगे तो वहाँ पे वो जाके अटैच कर देगा, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही आ जाएगा। समझ रहे हो? दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मी एज वेल, टू बी ऑनेस्ट। ओके, दिस वॉज इट। another thing is, do I recommend using someone else notes? Definitely not. Notes आप खुद ही बनाओ, probably आप you're not one of those persons जिसे डिजिटल नोट्स अच्छे लगते हो, तो वो डिसीजन आप लो, लेकिन नोट्स आप अपने ही बनाओ। ओके, do I need to have a high end laptop for using this? Absolutely not. You can use it on your tablet as well, लेकिन उस पर कीबोर्ड होगा तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। फ़ोन में यूज़ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, बट हाँ, ये बात है कि आपने नोट्स लैपटॉप या PC पे बनाया, ये सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है, सीमलेसली सिंक हो जाता है आपके फ़ोन के नोट्स में भी। फ़ोन पे आपने लॉगिन किया, iOS या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो नोशन, एंड सीमलेसली सिंक हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू बी ऑनेस्ट। सो आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, वैसे अभी कोई ट्रैवल तो कर नहीं रहा है, या कभी भी यू कैन फाइंड वेज ऑन हाउ टू यूटिलाइज दिस फीचर, राइट? डू आई नीड टू हैव अ हाई एंड लैपटॉप फॉर यूजिंग दिस? एब्सोल्युटली नॉट। एक 5 से 10 साल पुराना PC भी आराम से इसे हैंडल कर सकता है, तो एक, अगर PC आपका मान लो हैंडल नहीं कर पा रहा, राइट, तो यूज़ दिस ब्राउज़र। ब्रेव आजकल नया आया है, विच इज़ वेरी लाइट ब्राउज़र इन माई ओपिनियन। सो उस पर वो और आसानी से काम करेगा। सो आई होप everything is clear, right? Now let us look at some of your FAQs. Yeah, okay, so I have linked all the FAQs, all your FAQs over here. Let's go through them one by one. I take way too much time to make notes on one topic. Please suggest a way to reduce the time taken. So one way can be, using Notion, right? इसे आप एक बार आर्टिकल क्लिप करने में कम समय लगेगा। इस पर आप हाईलाइट कर सकते हो, यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑफ द कलर, यू कैन ऐड योर नोट्स डायरेक्टली। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग नोट्स, टू बी ऑनेस्ट, राइट? एंड वैसे रिड्यूसिंग टाइम से आई होप यू स्पेंड अराउंड 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट ऑन मेकिंग नोट्स। उससे अगर उतना अगर टाइम ऐसे भी लग रहा है तो फिर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
Question number 2, it takes too much time for me to take notes handwritten, around 45 minutes, and I can't remember stuff digitally. So I understand कि कुछ लोगों को ये के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें डिजिटल नोट्स पसंद नहीं है या फिर याद नहीं होते. सी, ये जो आपने बोला ना कि आई टेक अराउंड 45 मिनट्स, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. ओके, right now we are focusing since the CLAT changed its pattern, we are focusing more on going into the depth of the event. Okay, तो 45 मिनट्स लग रहा है. आई डो नॉट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम एट ऑल. डिजिटल यूज़ करना है कि नहीं, ये आप डिसाइड करो. मैं डिजिटल प्रेफर करता हूँ. पहले मैं भी सोचता था डिजिटल क्या होता है. आई वुड से कि ट्राई करके देखो 2-4 दिन, तो आपको ज़्यादा एक अच्छा पिक्चर मिलेगा. जो भी अभी डिजिटल नोट्स अवॉइड करते हैं, राइट, उसे एक बार ट्राई करके देखो. आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. आप ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो नोट्स को. या तो 45 मिनट्स ठीक है. नाउ आई टोटली रिलाई ऑन माई कोचिंग प्रिंट आउट्स फॉर करंट अफेयर्स, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट टू ऐड देम. I am still figuring out a good way to consolidate my notes. Now see, I do not recommend कि you rely completely on your coaching printouts for current affairs. Okay? क्योंकि that is one of the reason कि मैं भी notes नहीं provide करता. I simply link the recommended articles. Okay? This is not a जब से CLAT pattern change किया है, you should not rely completely on your coaching printouts. Change this as soon as possible. Okay? You can definitely refer them, but इसे पूरी तरह से बनाना, it is not going to help you, to be honest. Is it recommended to make notes daily from the newspaper? If so, how should the notes be taken? Just the headline or with details? Okay. So अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाओ, टॉपिक वाइज या इवेंट वाइज नोट्स बनाओ. एंड जो सेकंड क्वेश्चन हो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ हेडलाइन लेके क्या होगा, डिटेल्स के साथ बनाना है. ओके. फ्रॉम वेयर टू कवर होल CA, हाउ टू मेक नोट्स सो वी कैन रिवाइज फास्टली एंड एफिशिएंटली. How quickly and efficiently, how to cover both CA for CLAT and other entrance. देखो, ये कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही, हाउ टू मेक नोट्स की मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा यहाँ पे आंसर करना. हाउ टू मेक नोट्स सो वी कैन रिवाइज फास्टली एंड क्विकली एंड एफिशिएंटली. तो ये आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके देखो. ओके. और शॉर्ट हैंड में यहाँ पे भी आप, जो मैं इस टॉपिक की बात कर रहा था, शॉर्ट हैंड में बनाना सब कुछ, राइट. कि मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूँगा. ओके. नोट टेकिंग ही होता है शॉर्ट हैंड में सब कुछ लिखना, कम सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखना. और वो जनरली फैक्ट बेस्ड होते हैं, बाकी तो आपको पढ़ना पड़ता है ओपिनियन बेस्ड होगा तो. ओके. सो एज सच कुछ खास एडवाइस नहीं है मेरे पास फास्टली और एफिशिएंटली नोट्स कैसे बनाए उस पर. यू कैन डेफिनेटली ट्राई डिजिटल नोट टेकिंग प्लेटफॉर्म्स, टू बी ऑनेस्ट. विच टॉपिक टू पिक फॉर मेकिंग नोट्स? सो यू कैन रिलाई ऑन कोचिंग स्टफ फॉर दिस पार्ट. ओके. तो 75 इवेंट्स तो मैं ही कवर कर रहा हूँ. उसके अलावा अगर आप अभी स्टार्ट करें तो 150 इवेंट्स के अराउंड आपको करके जाना चाहिए. ओके. सो फॉर दैट स्टफ यू कैन रिलाई ऑन योर कोचिंग स्टफ मटेरियल, राइट. अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो फिर कोई एक प्रोमिनेंट मैगजीन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालती है महीने की, उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसकी लिस्ट बनाओ और उससे कवर करो गूगल से. ओके. What should be your revision strategy? Because they say you should be done with revision at least 10-15 times before your exam. 10-15 times, is it too much? That is debatable. But a good strategy, the question that you asked, a good strategy would be to revise each and every event. So for example, if I cover India at UNSC today, I will make sure that I cover it once again or revise it within the next 7 to 10 days. Okay. और उसके अगला रिविजन उसके भी 7 to 10 days के बाद. ओके. सो अराउंड 20 days फ्रॉम टुडे माई सेकेंड रिविजन फॉर इंडिया एट UNSC शुड बी डन. और उसी तरह से मैं आगे बढ़ूँगा. माइंड यू, अभी से जो आप इवेंट्स कवर कर रहे हो, राइट, या करंट अफेयर्स पे टाइम यू आर स्पेंडिंग टाइम, नाउ फ्रॉम नाउ ऑन स्लोली एंड स्टेडीली द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, राइट, दैट शुड इंक्रीज instead of making notes. Okay. Keep this in mind. Whenever I take the Hindu to read, I don't know how to make notes from that exactly. Help me out with this. So directly the Hindu newspaper से अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो मैं recommend करूँगा नहीं करो. Okay. Instead search up articles. Okay. So for example कोई, जैसे मैंने टॉपिक लिया इंडिया एट UNSC का ही, से उसके तो recommended articles अवेलेबल हैं, पर फिर भी इंडिया एट UNSC दृष्टि IAS का कोई आर्टिकल है उसको देख लो, 2-3 देख लो, राइट. उस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके. व्हेनेवर आई टेक द हिंदू टू रीड, सी, द हिंदू रीड करना अच्छी बात है, लेकिन उसे करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से रीड करो तो भी सिर्फ ओपिनियन पेज के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ खास इंपॉर्टेंट रहता है. ओके. स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. ओके. अगर आपके कोई स्ट्रैटेजी पहले से वर्क करते आ रही है तो प्लीज़ स्टिक टू दैट.
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड आर्टिकल, वॉच यूट्यूब वीडियोज़ एंड मेक नोट्स. तो यार 45 मिनट्स टू 1 आवर, इनफैक्ट अगर आप पहली बार उस इवेंट को कर रहे हो तो 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है, राइट? सो उसमें समय लगेगा. यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. Since there's a shortage of time, should we make elaborate notes or just highlight important points and write them in the materials itself? Should we still opt for reading the newspaper? तो सेकंड क्वेश्चन तो मैंने कवर कर दिया है. सिंस देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, यू से शुड वी मेक इलेबरेट नोट्स. सी, यहाँ पे आपके पास चॉइस ये है कि आप ज़्यादा इवेंट के कुछ डिटेल्स करो या कुछ इवेंट के ज़्यादा डिटेल्स करो. आई वुड रिकमेंड कि डूइंग इवेंट्स दैट आर ऑफ मोर सिग्निफिकेंस एंड उस पर ज़्यादा इलेबोरेट नोट्स बनाओ. ओके, सो या माई रिकमेंडेशन कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है, शुड वी मेक इलेबोरेट नोट्स, माई आंसर इज अ येस टू दिस. ओके, वॉट थिंग्स टू नोट, मियर फैक्ट्स और जस्ट सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स. आप क्लैट 2020 का पेपर जाके देख लो, फाइनल पेपर, ओके, करंट अफेयर्स का. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर सब्जेक्टिव इन नेचर. सो सी, आर्टिकल्स का एक अकाउंट रखना कि मैंने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जैसे आप रिविजन करने चाहो ना, तो आप उस आर्टिकल को जाके डायरेक्टली यू कैन गो थ्रू इट एज वेल. सब्जेक्टिव नोट्स बनाने के लिए, सब्जेक्टिव नोट्स बनाना यार पॉसिबल नहीं है, स्पेशली आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो. ओके, क्योंकि सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अभी आप नोट्स, फैक्ट्स नोट करो और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करके मेक अ database of how you are, of articles that you are reading, okay, for every event. ठीक है? Yeah. Websites other than Drishti IAS for note taking. How many topics on an average per month? Second question मुझे समझ में नहीं आया. How many topics on an average per month should be noted? 25 से 30. Okay, 25 से 30 is the max. ठीक है, ये नोट रखना. और थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट करेगा, हाँ, कि जनवरी में अगर ज़्यादा इवेंट्स कवर हो तो शायद 30 से 45. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. फरवरी भी, अब अप्रैल में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, तो उसमें थोड़ा और कम हो सकता है. सो या, कीप दैट इन माइंड. एनी टाइम टेबल फॉर रिविजन ऑफ पास्ट इवेंट्स एवरी 7 to 10 days. या, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट नोट्स ऑन नोशन, ये तो मैं बता ही दिया. हाउ टू एनोटेट नोट्स ऑन विंडोज़ 7. यार विंडोज़ 7 का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद क्रोम बेस्ड ब्राउजर्स पे कुछ एक्सटेंशंस आते हैं, ठीक है, तो उस पर आप जाके देख सकते हो. ऑलराइट. शुड वी सप्लीमेंट ईज द क्लैड नोट्स विद अदर material as well? Definitely yes. What exactly one should refer to? There is so much material in market, it is really confusing which one to choose and which one to leave. Okay, इतना आपने ये भी बता दिया. So see, these things, right? इससे मैं दृष्टि को छोड़ के कंपेंडियम्स जो एज सच होते हैं, उससे मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता यार कि आप उस पर कम्प्लीटली रिलाई करो. ओके, 2 या 3 सोर्स ठीक है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप, खास करके जो मैंने क्लैट 2020 फाइनल पेपर देख के आया हूँ, राइट? सो इसीलिए मैं कम रिकमेंड करता हूँ कि आप कम्प्लीटली रिलाई करो किसी कंपेंडियम पे. ओके, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इन अ वे टू चेंज दिस हैबिट ऑफ योर्स, आई हैव स्टार्टेड टू रिकमेंड आर्टिकल्स डायरेक्टली. ओके, एंड उससे आप नोट्स बनाओ. ओके, सप्लीमेंट करना है कि नहीं, एज द क्लैट्स नोट्स मेरे नोट्स नहीं है यार ये. ओके, ये आर्टिकल्स है और आप नोट्स उस पर बना रहे हो, मैं तो सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है. ओके, सो या, आई थिंक आई वॉज एबल टू कवर ईच वन ऑफ योर डाउट्स. अगर कुछ और डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो या मुझे मेल करो या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट डाउट. ओके, गिव दिस वीडियो a thumbs up if you found this useful and I will see you in the next one. Till then, goodbye and all the best. Bye.